Good morning, children. Today we gonna do some exercises based upon the non-finite. We have already a lot discussed about all the kinds of non-finite. The first one was infinitives. The second was gerund. And the third was participle. And we have also seen that infinitives are also divided into to plus verb and bare infinitives. Where there is no to, but it works like infinitive. Okay. Gerund like verb plus ing forms, act as noun, and participle two types. The first one the past participle, verb third form, and present participle, verb plus ing. Okay. Now class, let me tell you a little difference between gerund and present participle. Now you will ask, ma'am, you are saying that verb plus ing is gerund, and here you are also saying the verb plus ing is a past participle. Both are having a little difference. The difference is that they act like a noun, but they act like an adjective. Okay. Adjective or sometimes they work like complement of the verb. I have told you, introduce you about the complement of the verb. Complement of the verb क्या होता है बच्चों? जो verb की भाषा को complete करने के लिए यूज किया जाता है कि एक ऐसा फ्रेज जो कि किसी की भाषा को कंप्लीट करने के लिए यूज किया जाता है. जैसे मैं कहूँ I am going to the market. मैंने ये बताया ना. अब इस सेंटेंस में देखो, इसमें जो गोइंग है ये तो इसका वर्ब है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है? फ्रेज है. यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. Am I right class? क्लास am I right? हाँ, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. अगर इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस सेंटेंस में ये जो आप ऐड किया हुआ देख रहे हो ना, ये एक तरीके का आप लोगों का प्रेपोजिशनल फ्रेज है. लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज इस सेंटेंस में वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है. किसका काम कर रहा है? कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? जो किसी चीज को कंप्लीट करता है. कंप्लीट करने वाला क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट. अब आप लोग कहोगे मैम एक और कॉम्प्लीमेंट होता है. दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट होता है, याद रखना बच्चों. एक ये कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ये कॉम्प्लीमेंट होता है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड अमंग देम. ये है एक आपका होता है, एक और होता है कॉम्प्लीमेंट. इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है तारीफ. याद रखना, कभी भी दोनों में कंफ्यूज मत होना. नहीं कहते हैं प्लीज गिव मी सम कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि मुझे मेरी तुम कुछ तारीफ करो, मुझ पर कुछ कमेंट करो. ठीक है. और कॉम्प्लीमेंट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव वे में होता है, कभी निगेटिव वे में नहीं होता. ठीक है. और ये जो आपको कॉम्प्लीमेंट बताया मैंने, ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ये किसी चीज की पूर्ति करता है, खासकर वर्ग की पूर्ति करता है, इसके मीनिंग की पूर्ति करता है. आया समझ में? और किसी को एक मिनट क्लास. ओके. नाउ let's solve some examples. Okay. Yesterday I have given you the homework of exercise B. If you have done the homework, that's very excellent. If you haven't done the homework, kindly see what I am doing. Okay. The first one
and fill in the blanks with infinitives formed with words given in brackets. So what you have to do, here in the bracket some verbs are given, you have to use them in infinitive way. What are infinitives? Infinitives are having to before the verb. Am I right, class? Yes ma'am. Okay, तो फर्स्ट वाला आपका क्या है, मैं आप लोगों को एक दो चार में बता दे रही हूँ, आगे का आप लोग स्वयं ही कर लोगे, ठीक है? He agreed dash, in bracket is given, gave permission for the rally. Yes ma'am. अब इसमें इस सेंटेंस में अगर आपको इंफिनिटिव भरना है तो हमें क्या करेंगे, हम आपको गिव दिया हुआ है, सॉरी इसमें एन मैंने जबरदस्ती लगा दिया है, आपको गिव दिया हुआ है तो आप इसको इंफिनिटिव कैसे बनाओगे, टू के साथ गिव लिखकर बना सकते हो ना, तो आप यहाँ पे क्या फिल कर दोगे, टू गिव, ऐसा किया है सबने? Second one is the boy went there. The boy went there. Dash. What is given? Eat. Eat and ice cream. So what we have to do? Very good. To eat. Very good. To eat. Okay, next the third one is the protesters. What is the meaning of protesters, class? मैम जो लोग धरना देते हैं, विरोधी। Yes. Protesters means जो विरोध जताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Protesters. So the protester wanted dash. What is? Sit at the Jantar Mantar. Do you know what is Jantar Mantar? Class, do you know what is it? Yes ma'am. What is it? Jantar Mantar is a monument, historical monument made in Mughal period. Okay. So what we will write? To sit. Just like that, the other questions are also there. To sit. Yes, very good. Next one, in the fourth one, what will be the answer? The mother wanted to forgive. Very good. Fifth one, she wanted. Very good. To write. In the sixth one, the fireman tried to control. Then seventh one, no seventh one, sorry. Okay. Okay, next is the C1. C1 exercise is saying fill in the blanks with infinitive with or without to. It means in this one you have to decide that you have to use to or not to. मतलब या तो आप टू यूज करिए या तो आप नहीं यूज करिए, या आपके डिपेंड करता है कि आपको वहां पर क्या यूज करना है, ठीक है? इसमें थोड़ी सी आपको अपनी संजीदगी बतानी पड़ेगी। संजीदगी समझते हो? अपना कॉन्सेंट्रेशन दिखाना पड़ेगा। The first sentence is the teacher made the students dash laboratory जानते हो क्या होता है?
बच्चों ना हम साइंस को साइंटिस्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि साइंटिस्ट के लिए होता है। ये बोलो कि लैब इज द प्लेयर वेयर रिसर्चेस आर डन, वेयर रिसर्चेस आर डन, जहाँ पर रिसर्च करी जाती है। अब वो रिसर्च कैसी भी हो सकती है, वो इंग्लिश के सब्जेक्ट की भी हो सकती है, वो हिंदी के सब्जेक्ट की भी हो सकती है, संस्कृत की भी हो सकती है। आया समझ में? साइंस में ही नहीं होती है लैब, इंग्लिश में भी लैंग्वेज लैब होती है, तब क्या बोलोगे, साइंस नहीं होती क्या? ठीक है, अब सुनो आगे। सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ हिंट है आपका क्लियर। अब यहाँ देखो, इसमें एक सेंटेंस में लिखा है द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डैश द लैबोरेटरी। अब यहाँ पे देखो पहले ही बता दिया है कि मनाया है उसने, उन सबसे करवाया है। टीचर ने बच्चों से, स्टूडेंट्स से लैबोरेटरी के सारे टेस्ट ट्यूब और बीकर्स को साफ करवाया है। ठीक है, तो अब क्लियर करवाया है, तो करवाने के जब भी यूज करें और मेड जब भी आए तो उसके आगे कभी भी टू नहीं लगेगा। ये एक फिक्स वो है, मतलब एक फिक्स फेनोमेना है इंग्लिश का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, डायरेक्ट क्लियर लिखोगे। आया समझ में? यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर मेड वर्ड आया है, ये दिमाग में अपने भर लो। नेक्स्ट, ही नीड्स। ये पहला वाला सबको समझ में आया कि नहीं? क्लास जवाब तो भाई। यस मैम। किसको समझ में नहीं आया? कोई ऐसा जिसको समझ में ना आया हो कि यहाँ पर टू क्यों नहीं यूज हुआ? सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पर अगर मेड आएगा तो यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा। ये जिंदगी में नोट कर लो बस, यही इसका मेन मकसद है। नेक्स्ट, ही नीड्स डैश सम गाइडेंस इन इंग्लिश। अब बताओ, टू टेक लगाएं या फिर टेक लगाएं? क्लास डिसाइड। हाँ, टू टेक। वेरी गुड। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू टेक। वेरी गुड। नेक्स्ट, he wanted dash for his lost mobile. To search. He wanted to search. Very good. यहाँ पर क्या होगा आपका, टू सर्च। ओके, द फोर्थ वन इज हरप्रीत कैन बेटर ड्रॉ देन। क्या होगा यहाँ पे? यस, यहाँ पे क्या होगा, केवल पेंट होगा, टू पेंट नहीं होगा। टू पेंट का मतलब तो हम किसी वर्ग के बारे में बता रहे हैं, यहाँ तो केवल पेंट और ड्रॉ के बीच में कंपेयर हो रहा है। इधर देखो ध्यान से, इसमें लिखा है हरप्रीत कैन बेटर ड्रॉ। अगर यहाँ टू ड्रॉ लगा होता तो भी यहाँ पेंट के आगे टू नहीं लगाते, रॉन्ग हो जाता, क्योंकि आप रेपिटेशन नहीं कर सकते हैं। आया समझ में? इसलिए यहाँ पे टू का यूज नहीं होगा। देन द फिफ्थ वन, डज शी डेयर। डेयर के आगे कभी भी टू नहीं लगाते हैं बच्चों। डेयर के आगे टू का ओमिशन हो जाता है, तो इसके आगे क्या लगाएगा, शी डेयर ब्रेक। डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वन, ये इन पॉइंट्स को लर्न कर लो बच्चों, तुमको अभी तुम लोगों के समझ के परे हैं ये सब। पहला कि मेड जब भी आएगा तो यहाँ पर बेयर इंफिनिटिव यूज होगा। दूसरा, जब खासकर जब मॉडल्स का यूज होगा, मॉडल्स जैसे कैन और कुड इस तरीके के यूज होंगे तो वहां पे आपका बेयर इंफिनिटिव यूज होगा। दूसरा, यहाँ पर अगर डेयर का यूज होगा, डेयर, तो उसमें भी टू का यूज नहीं होगा। तो ये सब चीज़ों को लर्न कर लो। अब देखो आपके बुक में
कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। लुक एट द यूज ऑफ इंफिनिटिव्स दीज सेंटेंसेस। टू ड्रिंक इम्प्योर वाटर इज हार्मफुल, टू वेस्ट टाइम वॉचिंग टेलीविजन ऑल थ्रू द डे इज नॉट गुड, टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द नेचर इज वेरी rejuvenating, to eat junk food is unhealthy, to fight the thief single-handedly was brave of him, to open a library in the colony was a good idea. The above sentences are grammatically correct, but they appear awkward. We can make them look elegant if we write them in following manner. It is harmful to drink. It is not good to waste time. It is very rejuvenating to enjoy. It is unhealthy to eat junk food. It was brave of him to fight. It was good idea to open. So what has been told? It has been told to you. Class, mute yourself. Class, mute. Listen. I was telling you that आपकी बुक में एक जगह पर ऐसा दिया हुआ है, जस्ट इस एक्सरसाइज के बाद आप लोग का दिया हुआ है कि आप लोगों को किस तरीके से इन्फिनिटिव को सेंटेंस में यूज करना है। अगर आप किसी सेंटेंस में टू के साथ किसी वर्ब को यूज करके आप उस वर्ब की विशेषता या उसके बारे में बताने निकले हैं, या फिर ये नाउन की तरह काम करने वाला है। ध्यान से सुन लो, ये नाउन की तरह वर्क कर सकता है कई बार। जैसे मैं बोलूँ ना, टू स्विम इनटू, सॉरी मैं आप लोगों को सेंटेंस लिख के दिखाती हूँ तो आप लोग समझ जाओगे। वेट, जैसे मैं बोलूँ टू स्विम इनटू द सी इज डेंजरस। मैंने एक सेंटेंस बताया, ठीक है आप लोगों को। अब इसमें जो वर्ड लिखा है टू स्विम, यहाँ पर टू स्विम किसका कार्य कर रहा है? सब्जेक्ट का वर्क कर रहा है, ठीक है। इट इज एक्टिंग लाइक अ सब्जेक्ट। एम आई राइट क्लास? यस मैम। हाँ, अब हमने क्या लिखा है? अब ये जो है यहाँ पर जो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, लेकिन हम इस चीज को ग्रामेटिकली सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई इंफिनिटिव का सही यूज हुआ है, उसके बाद आगे का सेंटेंस भी एकदम करेक्ट है, लेकिन इसे हम राइटिंग में करेक्ट नहीं मानते। तब हम एक इसे कंसीडर करते हैं कि यह सेंटेंस रॉन्ग माना जाता है। बोलने में तो इट इज इजी, लेकिन इन राइटिंग इट इज नॉट गुड। सो व्हाट वी शुड डू? वी शुड राइट इट इन दिस वे। इट इज dangerous to swim into the sea. इसका एक और वर्जन हो सकता है, it is to swim into the sea, ये इस वाले का तो यही होगा, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो आप लोग इसे इस तरीके से करेक्ट वर्जन में लिखेंगे। आया समझ में? आप लोग किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, खासकर तब ऐसा नहीं कि ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। फिर से बता रहे हैं, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं है, ग्रामेटिकली इट इज करेक्ट, बट इट लुक्स awkward. That's why in English it has been told that whenever you are writing and we start the infinitive at the first, we should start with some it is. Okay class? Understood? Okay. Next exercise is rewrite these sentences using introductory it. अब वही चीज क्या लिखा है? To compose poems is creative. तो क्या हो जाएगा? It is creative to compose poem. Very good, very good. Who told this answer first time? Who has told this answer? Okay, clapping for the girl. अब कोई क्लैपिंग नहीं करेगा, किसी को तारीफ नहीं मिली ना, चलो कोई नहीं। So
It is creative to compose poems. Okay class, ये समझ में आया आप लोग को? ऐसे ही आप लोग 5 सेंटेंसेस कर लोगे आपसे. Can you do it yourself? Can you? Yes. Okay. So it is your homework. It is to be done in your fair copy. Okay? It is your homework. Next is complete these sentences by adding appropriate form of words and infinitives. Clue have been provided in the brackets. The first one has been done for you. Okay? Let's do the next one. I am solving E. Okay class? E में आपका पहला दिया हुआ है. The doctor wanted to examine the patients. Okay? Just like that, you have to also make the phrase. What the phrase? The next phrase is given. Nasreen planned To meet the friends. very good, very good. To meet the friends. Very good. Who has told me this answer? Ma'am Utkarshi. Yes, very good, Utkarshi. Keep learning, my dear. Next one. She has 3 kids. Very good. To look after. Very good. Have to look after. Yes, very good. So just like this, you have to do all these sentences. If you will have any problem, you can ask me on my WhatsApp. Okay? Do you have any problem? You can ask me on my WhatsApp. Okay? So this is also your homework. This should be done in your fair copy. Okay? Can you do? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, now let's Yes, move ma'am. further. Let's move further, class. Next one is using the infinitive with adverb to. अब यहाँ पर adverb to के बारे में बात किया है. आपने to का यूज जानते हो आप लोग? to का यूज हम कब करते हैं? जब कोई चीज एक्सट्रीम होती है. एक्सट्रीम का मतलब समझते हो? लेकिन नेगेटिव वे में होती है. एक्सट्रीम मतलब नेगेटिव वे. अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है? एक बच्चा है, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, आप तो समझ जाओगे. ठीक है? 2 स्टूडेंट्स हैं. एक का नाम है रामू और दूसरे का नाम है श्याम. ठीक है? रामू और श्याम जो हैं दोनों फ्रेंड्स हैं और दोनों ही टेबल पे बैठे हुए हैं. ठीक है? आगे से टीचर पढ़ा रही है. रामू जो है वो बार बार श्यामू को डिस्टर्ब कर रहा है. तो श्यामू रामू से कहता है इट इज नाउ टू मच. मतलब तुमने बहुत बोल लिया. यहाँ पर टू मच बोलने का मतलब तुमने बहुत बोल लिया. यहाँ इसका मतलब ये है कि तुमने अधिक तो बोला लेकिन इतना ज्यादा बोल दिया कि तुमने अपनी लिमिट भी क्रॉस कर दी. जब कोई चीज लिमिट से भी क्रॉस हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं टू लगा देते हैं. अब जैसे अगर ये बच्चा मोटा हो, उसका पेट खूब मोटा सा हो एंड ही इज फैट, ओके, और ये पतला सा हो कि इसको सीट में जगह नहीं मिल रही हो. ये वाला बच्चा इस वाले बच्चे से कहता है कि यू आर टू फैट. यहाँ पर वो ये कहना चाहता है कि तुम मोटे तो हो, इट मीन्स तुम फैट तो हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा फैट हो. क्या हो? बहुत ज्यादा फैट हो. बहुत ज्यादा फैट होने का मतलब तुम निगेटिवली, वो तुम्हारे ऊपर एक निगेटिव कमेंट कर रहा है. तो ही इज सेइंग यू आर टू फैट, मतलब बहुत मोटे हो. ठीक है? तो टू का मतलब हमेशा निगेटिव वे में लिया जाता है कि मतलब जिसका ये मतलब होता है कि आप अगर किसी को कुछ कहना चाहते हो निगेटिव वे में कहना चाहते हो. ठीक है? अब जैसे मैं बोलूं कि मेरे हाथ में कोई बैग है हैवी सा. ठीक है? मैं कहूँ इट इज टू हैवी. इसका मतलब कितना हैवी है ये?
इतना हैवी है कि मैं इसे उठा ही नहीं पा रही हूँ। आया समझ में? ये होता है इसका मतलब। इसी तरीके से आपको ये सेंटेंसेस यूज करने हैं, लेकिन जब भी हम टू का यूज करते हैं बच्चों, तो उसके साथ एक रीजन भी देते हैं, ठीक है। अब उस रीजन को हम लोग सॉल्व करना है। पहला सेंटेंस है आपका रीराइट दिस सेंटेंस। अब एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, उसके बाद आप लोग कर लोगे, ठीक है। आई एम सॉल्विंग F1, सॉरी, F1 is the numerical is very complicated. Complicated means class. Difficult. Yes, difficult. Very good. Difficulty. Difficulty is something different from difficult. Difficult is adjective, difficulty is noun. Kindly mind your words. You are in English class, you are not in mathematics class. That they will not mind your words. You cannot solve it. Now how we will make it? By using two. We will use it like this, that the numericals only numerical it is too complicated to solve. Simple. क्लास आया? अगर देखो मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ। अब देखो तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पर द स्टूडेंट को भी गायब कर दिया, इसको भी गायब कर दिया, इसको भी, सब कुछ गायब कर दिया ना। मैं इसे मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अगर आप लोग इसे ट्रेडिशनल ग्रामर के अकॉर्डिंग करोगे तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा बनेगा, द न्यूमेरिकल is too complicated for students to solve। आया समझ में? ये आपका ट्रेडिशनल तरीका है और ये आपका मॉडर्न तरीका है, लेकिन आप लोग एग्जाम में मॉडर्न तरीका कभी मत अपनाना, क्योंकि अभी तो मैं आप लोगों को नंबर दे दूंगी, लेकिन जब आप लोग क्लास 10th में चले जाओगे तो ये मॉडर्न तरीका, जो कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होता है ना, वो मॉडर्न तरीके को चेक नहीं करता। वो मॉडर्न तरीके से पढ़ाई भी नहीं किया होता, वो पढ़ाई किया होता है कई साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले। तो उस वक्त मॉडर्न ग्रामर की इतनी समझ नहीं होती थी, ना ही मॉडर्न ग्रामर को एक्सेप्ट किया जाता था। तो वो टीचर आपका मार्क्स 0 कर सकता है। आया समझ में? तो इसलिए मेरी यही रिकमेंडेशन है कि आप लोग ट्रेडिशनल इंग्लिश का ही यूज़ करना। ट्रेडिशनल इंग्लिश यूज़ नहीं करोगे 0 मार्क्स मिल जाएगा। फिर तुम लोग कहोगे कि मैम ने तो ऐसा ही बताया था। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। मैम बताती हैं आप लोगों के सहूलियत के लिए, लेकिन आप लोगों को मैं पहले ही बेवेयर कर दे रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आपका सेम टू सेम है बच्चों। द बैग इज वेरी हैवी, द गर्ल कैन नॉट कैरी इट अपस्टेयर्स। सो क्या होगा इसका सेंटेंस? द बैग इज टू हैवी फॉर द गर्ल टू कैरी इट अपस्टेयर्स। बस, वेरी गुड। ये वाला कर लोगे, इसको भी फेयर में करना। ओके मैम।
नेक्स्ट है आपका सेंटेंस कॉम्पैक्ट बनाना है। सेंटेंस कॉम्पैक्ट मतलब दो सेंटेंस को मिलाकर छोटा करना है, ठीक है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। Sometimes an infinitive used to make a sentence compact. Read the examples. जैसे मैंने अभी आप लोगों को अभी मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से बताया है ना, वैसे ही यहाँ पर इसे बताया जाता है। विनीता इज द बेस्ट पर्सन हु कैन बेक द केक। तो विनीता इज द बेस्ट पर्सन टू बेक द केक। Just like that, Puneet hopes that he will clear the first round of singing competition. Puneet hopes to clear the first round of singing competition. Just like that, we are going to solve the first one. The first one is Meena. It is already done, class. The second one, Akshat. Akshat was the only boy who brought a gift for Samarth. अब बताओ इसको कैसे बनाएं? Who can tell me the answer? Akshat was the only boy to bring a gift for Samarth. Akshat was the only boy to bring a gift for Samarth. Very good, very good. क्या होगा इसका आंसर? Akshat was the only boy to bring a gift for Samarth. Very good. So, can you do other points, other segment of this Yes. question? Okay, this is also your homework. Ma'am, we have to write this in also notebook. No, you all these kind of special the examples of infinitives, इसको अपने फेयर कॉपी में जरूर कर लेना, क्योंकि ये तुम लोगों को अभी नहीं पूरे साल काम आएंगे, ठीक है। इनको फेयर कॉपी में एक बार कर लोगे तो आप लोगों को रट जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसका यूज आप लोगों को पूरी लाइफ टाइम करना होगा, ये लाइफ टाइम यूज के लिए बता रही हूँ। फिर लिखा है यूजिंग इन्फिनिटिव्स टू जॉइन सेंटेंसेस, सेम चीज यहाँ पे भी है। यूज इन्फिनिटिव टू जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यू कैन बोरो द पेंट बॉक्स, यू नीड द आर्टिस्ट परमिशन। तो क्या होगा इसमें? एच वी आर गोइंग टू सॉल्व। यू कैन बोरो द पेंट box, you need the artist permission. Okay, so here two sentences are given, you have to synthesize them. synthesis मतलब समझते हो ना, सेंटेंस जोड़ना। अब हमको इन दोनों को ज्वाइन करना है, सिंथेसिस करना है। कैसे करोगे? यू कैन, नहीं सॉरी व्हाट विल डू? यू नीड द आर्टिस्ट permission to borrow the paint box. Isn't it, class? Is it correct, class? This one? Yes, ma'am. Very good. Okay, next one.
woman is very old, she cannot talk properly. यहाँ पर क्या करोगे? The woman is too old. अब यहाँ पर too old कर देना क्योंकि very old बता रहा है और नेगेटिव भी है. देखो ध्यान से, ये ओल्ड भी है और कैन नॉट भी लगा है, निगेटिव भी है, तो यहाँ पर टू लगा दो. ये सेंटेंस कैसे बनेगा मैं बता दे रही हूँ क्योंकि तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे. द वुमन इज टू ओल्ड टू टॉक प्रॉपरली. अंडरस्टूड क्लास? ये बनेगा आपका सेंटेंस. एच का सेकंड वाला मैंने बता दिया आप लोगों को. थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ भी बता दो बच्चों. क्लास प्लीज टेल मी योर डिफिकल्टीज, अदरवाइज हाउ कैन आई हेल्प यू. कैन यू डू थर्ड फोर्थ और फिफ्थ और अदरवाइज आई विल टेल. Excuse me, ma'am. Yes, dear. Ma'am, how will you join the sentence? The girl ate a piece of cake. He saw it. Again, tell me the example. Again. The girl ate a piece of cake. He saw it. A girl saw a piece of cake. Then next. He ate it. The girl saw a piece of cake and then the next sentence was beta. He ate it. She eat it. No, ma'am. He ate it. ये तो लड़की है, इसमें ही कैसे लग सकता है बेटा? Ma'am, in my book it is given. अच्छा, ओके, समझ गई. ये किसी और बच्चे ने खा लिया. ओके ओके. इसका ऐसे बनेगा बेटा. दो सेंटेंस है वो भी डिफरेंट. वेट